स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? आज हम लोग 11th का एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 19, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। What is excretion? Excretion is a biological process in which elimination of metabolic waste from inside body to outside of the body. Excretion is a biological process in which elimination of metabolic waste from inside body to outside. This is the definition of the excretion. Excretion is a biological process in which elimination of metabolic waste from inside body to outside of the body. Now, metabolic waste. Metabolic waste. Metabolic waste are that waste material which are created after the completion of metabolism. तो मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं बॉडी में, उसी को मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और इनकी जो डिफरेंट कैटेगरी होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट की जो अलग अलग कैटेगरी होती है, इसमें पहला होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। Nitrogenous waste are the resulting product of protein metabolism. Nitrogenous waste are the resulting products of protein metabolism, and these are ammonia, urea and uric acid. Nitrogenous waste are the resulting product of protein metabolism, and these are ammonia, urea and uric acid. If we compare the toxicity of these nitrogenous waste like ammonia, urea and uric acid, ammonia are more toxic. Ammonia are more toxic in comparison than urea, uric acid. Ammonia as a excretory product mostly found in aquatic animals like fishes, aquatic amphibians, aquatic insects, etc. Ammonia is a nitrogenous waste
mostly found in aquatic animals like fishes, aquatic amphibians and aquatic insects. For the elimination of ammonia, for the elimination of ammonia, for the elimination of ammonia, animal required high amount of water. स्टूडेंट, अमोनिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो यूरिया और यूरिक एसिड की तुलना में ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसके एलिमिनेशन के लिए एनिमल्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसको ऐसे उदाहरण में समझ सकते हैं कि यदि आप कोई जो है बहुत कड़वी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको जो है मेडिसिन को लेते समय जो है क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, पानी में उसको ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है। इसीलिए जो है यहाँ पे देखेंगे अमोनिया जो बहुत टॉक्सिक है और इसको जो है डाइल्यूशन के लिए अधिक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज वाई फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया एनिमल्स रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ वाटर। यूरिया is another nitrogenous waste resulting product of metabolism of proteins and they required slightly less water for their elimination. Similarly, uric acid are also nitrogenous waste and they are excreted out in form of semi-solid material. In form of semi-solid material. If we talk about the urea excreting animals, then we have seen humans, terrestrial amphibians, and other mammals. Similarly, if we talk about the example of uric acid, then we seen that birds, reptiles and few insects. So for the elimination of ammonia, animals require more water. For the elimination of urea, animals require less water, and there is no water required for the elimination of uric acid. These are the nitrogenous waste. Metabolic waste are bile pigments, like bilirubin and biliverdin. Form due to the destruction of hemoglobin. Biopigments like biliverdin and bilirubin are the another metabolic waste formed by due to the destruction of hemoglobin. ये जो है नॉन नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन नहीं होता है और इनका निर्माण जो होता है वो हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण होता है, जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं। इनके अलावा जो है अगला जो है वो CO2 है, excreted out by lungs। तो एक्सेस जो CO2 बॉडी में बनते हैं वो भी जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है जिसको लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है।
लंग्स के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं बिसाइड द CO2 excess water and mineral salts like sodium, calcium chloride, and these are also a metabolic waste. यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है नीट वगैरह में, जहाँ पे पूछा जाता है कि द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम टेक्स प्लेस। तो एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम जो है ये किडनी के द्वारा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कैल्शियम जो होते हैं ये इंटेस्टाइन के द्वारा एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं, इंटेस्टाइन। तो कैल्शियम आयन आर एक्सक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन। कैल्शियम आयन आर एक्सक्रीटेड by intestine mostly. Now student, question is that why we need excretory system? Why we need excretory system? Digesting protein make poison. As I know about that, after taking the food, digestion is start. जब हम भोजन करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, फिर डाइजेशन करने के बाद उसका जो है एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन, देन जो है फाइनली इजेशन हो जाता है। और जब डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है तब हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है इसका डाइजेशन होने के बाद ये टूटता है एमिनो एसिड में, टूटता है एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड बनते हैं। फिर इनका जो है मेटाबॉलिज्म चलता है, इनका जो है मेटाबॉलिज्म चलता है। तो यहाँ पे इस एमिनो एसिड से क्या बनते हैं? अमोनिया। अमोनिया प्रोड्यूस होगा और इससे बनेंगे पॉइजन। फिर इनका जो है एलिमिनेशन रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए हमें जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी और नेचर ने एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट किया। तो यहाँ जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो बेनिफिशियल प्रोडक्ट तो बनते ही बनते हैं, इसके अलावा जो है कुछ टॉक्सिकेंस भी बन जाते हैं जिनका एलिमिनेशन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे एमिनो एसिड बनेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये जो है एमिनो एसिड है जिसका ये वाला पार्ट जो क्या बना लेगा, यहाँ से बना लेता है NH3 यानी कि अमोनिया बना लेगा, और ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से ये बनाता है CO2 प्लस H2O। ये कब होगा? ये आफ्टर जो है मेटाबॉलिज्म होता है। अब यहाँ से एमिनो एसिड से अमोनिया बनने की क्रिया को कहते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, the process of synthesis of ammonia from amino acid is called as deamination। तो यहाँ deamination हो जाएगा, यही अमोनिया बनती है क्योंकि अमोनिया जो होता है ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक। दिस इज व्हाई द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया नेचर डेवलप्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट इसको समझ पा रहे हैं कि जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स from inside body to outside। Now student, excretion से जुड़ा हुआ जो दूसरा टर्म आता है होमोस्टैटिस। होमोस्टैटिस का मतलब होता है होमोस्टैटिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिफरेंस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहरी वातावरण के प्रति अपने आंतरिक वातावरण को बनाए रखने की क्रिया को होमोस्टैटिस कहते हैं।
होमोस्टैटिस के आधार पर एनिमल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला है ऑस्मोकन्फर्मर्स। ऑस्मोकन्फर्मर्स क्या होते हैं? एनिमल्स होज इंटरनल ऑस्मोलरिटी चेंज इन रिलेशन टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये ऑस्मोकन्फर्मर्स होते हैं ऐसे एनिमल जिनका इंटरनल ऑस्मोलरिटी होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अनुसार बदलता रहता है, ऐसे एनिमल को ऑस्मोकन्फर्मर्स कहते हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो मैराइन फिशेस, यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर जो है किसी मैराइन वाटर फिश को फ्रेश वाटर फिश में रख दिया जाए, किसी मैराइन वाटर फिश को अगर फ्रेश वाटर में रख दिया जाए तो वहां पर इंडोऑस्मोसिस होने लगेगा। जब प्लांट वाटर रिलेशनशिप आप पढ़े होंगे तो वहां पे एक टर्म आया होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इंडोऑस्मोसिस में रहेगा और उस फिश के अंदर जो है इतना अधिक पानी भर जाएगा कि फिश जो है फेल करके डेड कर जाएगी। तो इसीलिए जो है इसमें जो है होमोस्टैटिस होता है और होमोस्टैटिस होने के लिए जो है नेचर ने उसको एडेप्टेशन दिया हुआ है और उस एडेप्टेशन के द्वारा जो एनिमल्स होगा वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज कर लेता है। दैट इज ऑस्मोकन्फर्मर्स। Animals whose internal osmolarity change in relation to their external environment is called as osmoconformers. Examples marine water fishes and freshwater fishes. उसके बाद दूसरा जो टर्म आता है ऑस्मोरेगुलेटर्स। ये ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स आर दोज एनिमल्स where internal osmolarity cannot be changed in relation to external environment। जो ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं इनकी जो बॉडी की ऑस्मोलरिटी होती है वो जो है कभी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात इनकी जो बॉडी की ऑस्मोलरिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, हमेशा एक समान बनी रहेगी। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन है एंड अदर टेरेस्ट्रियल मैमल्स, जितने जो है टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं वो सब के सब जो है ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं। तो दिस ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of homeostasis. Now student, main excretory structure in animals, name of structure, name of animals. Plasma lemma or contractile vacuoles found in protozoans like amoeba, paramecium, Eugenia etc. Phlegm cells or solenocytes found in platyhelminthes. General body surface found in Porifera and Syringenta. Renate cells जो कि एस्केलेंथिस, एस्केलिस वगैरह में पाया जाता है। मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट इन एनिलिडन्स लाइक अर्थवर्म, मैल्पिथियन टिबूल्स, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और इसका आर्थ्रोपोडा का एक क्लास होता है जो सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्टा। इसमें जो जैसे कि ग्रासहॉपर है, मॉस्किटो है, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मैल्पिथियन टिबूल्स होता है। ग्रीन ग्लैंड्स फाउंड इन आर्थ्रोपोडन्स क्लास क्रस्टेशिया। Coxo gland found in arthropods class Arachnida and organs of Vogenus or cavus organ जो कि मोलस्का का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। इनके अलावा जो है अगर हम कार्डेट की बात करें, कार्डेट की, तो कार्डेट के जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं उसको किडनी कहते हैं। जो कार्डेट्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो किडनी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किडनी जो है तीन तरह की होती है, प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी। प्रोनेफ्रिक किडनी जो होता है वो फिशेस में पाया जाता है, मेसोनेफ्रिक किडनी एम्फीबियंस में, इनके अलावा जो मेटानेफ्रिक किडनी होता है ये जो है बर्ड्स एंड मैमल्स में पाया जाता है। तो कार्डेट्स की अगर बात करेंगे तो कार्डेट्स का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उसको किडनी कहते हैं। किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तीन प्रकार की किडनी होती है, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। मेसोनेफ्रिक किडनी जो होता है वो फिशेस एंड प्रोटोकार्डेट्स में पाया जाता है, मेसोनेफ्रिक एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में पाया जाता है और मेटानेफ्रिक किडनी जो होता है वो बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है।
थैंक यू सो मच।